Yes. Now these two are done. We've done with volume. We are done with composition. Now we are doing direction. When I say direction of trade, this means मेरी जो ट्रेड हो रहा है गुड्स का वो किस कंट्री की तरफ है, किधर डायरेक्शन है, whether it is with Europe countries or maybe with Britain or with which countries, Asian countries, किन के साथ है. Let's see. डायरेक्शन क्या है पहले तो, it indicates the countries with which a country trades. Okay, it indicates a meaning रट ले. Okay, it indicates the destination where a country's exports go and also the points of origin from where a country's exports go and also the point of origin from where a country's imports come. पहली वाली लाइन दो बार बोल दी मैंने. So किधर जा रहा है और कहाँ से गुड्स आ रही हैं, इस मूवमेंट को किस तरफ डायरेक्शन है उसे डायरेक्शन बोलते हैं. Let's begin with first bullet point. In 1950-51, USSR and East Europe, okay, did not appear in our export and import क्योंकि पहले तो सारा ब्रिटेन के साथ ही restricted था. Some we were doing it with China and Sri Lanka. पहले क्या था, USSR East Europe नहीं था. ये क्यों कह रहा है, क्योंकि अब है. India also expanded its trade contacts with other developed countries of the world, especially with USA and West Europe, right? Saudi Arabia latest add किया हमने 4 years back I suppose. जब हम कहते हैं मोदी जी इधर उधर घूमते रहते हैं, जी वो घूमने नहीं जाते, अपनी फैमिली के लिए घर का सामान इकट्ठा करने नहीं जाते, वो कंट्री के लिए ट्रेड इंश्योर करने जाते हैं. So Saudi Arabia is one of those. So Saudi Arabia has also emerged as our significant trading partner, recorded about 4% share in India's foreign trade. बहुत अच्छे से हम उधर चल रहा है हमारा काम between 2010-11 and 16-17. It is interesting to note that in the wake of globalization and free trade, Chinese goods have dominated the Indian market much more than Indian goods in Chinese market. I am sure we understand this line. Now moving towards, now we are done with India's foreign trade and features. Very important question. Just pen it down here. Very important, inward looking strategy, जिसके अंदर हम import substitution पढ़ेंगे. Okay? Inward looking strategy word से मतलब समझो पहले तो. नाम क्या है? Inward देखना. Inward समझते हैं, आजकल बड़ा चल रहा है. Turning inward if not outward means अंदर, inside. Looking inside. Similarly, we had the strategy that was inward looking, मतलब अपनी ही growth के बारे में बात करना. When it is in context to the country means domestic industry को preference देना. वो कैसे किया? Let's understand. मैं पहले थोड़ा overview दे देती हूँ, फिर हम reading करेंगे. इसके अंदर हमने एक ये काम किया, क्या? Import substitution policy लगा दी. इसका मतलब है import को substitute करना. बट बोला इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम उसे सब्सटीट्यूट कर देंगे किससे? डोमेस्टिक प्रोडक्शन से. तो इन अ वे आई एम गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू डोमेस्टिक प्रोडक्शन रादर देन बाइंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री, जिससे कि मेरा डिपेंडेंसी उन पर बढ़ जा रही है. आई विल प्रोड्यूस इट माई सेल्फ एज फार एज पॉसिबल. ठीक, अब हमने ये किया कैसे? ये जो import substitution, how this was made possible and why did we do that? These are two questions. तो एक जनरल स्टोरी समझते हैं. नंबर 1, हम सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे. कहाँ पहुंच गए? सेम चैप्टर के फर्स्ट पोर्शन में 2.1 में गोल था हमारा प्लानिंग का. फर्स्ट गोल सेकंड थर्ड नंबर पे लिखा है सेल्फ रिलायंट. क्या लिखा था? हम सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे और हम नहीं चाहते कि फॉरेन वालों की इंटरफेरेंस मेरी लाइफ में हो. सो लेट्स बी इंडिपेंडेंट. सो टू बिकम इंडिपेंडेंट आई प्रेफर टू प्रोड्यूस माई सेल्फ. ओके, सो हम खुद प्रोड्यूस करेंगे. ये तो हो गया उसका रीजन. हम नहीं चाहते किसी की इंटरफेरेंस.
हमने किया कैसे? So there are two tools through which we ensure that we are going to restrict this. Two. One is tariff, okay, and the second is quota. Quota and tariff. Tariff को हम टैक्स के नाम से जानते हैं, right? और quota को I can say quantitative restriction. ये अगर दो वर्ड लिख देंगे तो मुझे लर्न करना आसान हो गया. अब मैंने कहा, अब जैसे इट्स समथिंग लाइक इफ गवर्नमेंट सेज टू देयर पीपल that we are substituting imports, we are not going to buy from them and we will produce ourselves. और आपको लगता है गवर्नमेंट ने ऐसे बोला और हमने कहा हाँ जी क्यों नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जो कहेंगे हम मान जाएंगे. जैसे ये लॉकआउट में हम बड़ा मान रहे हैं ना, लॉकडाउन हुआ तो बहुत कहना मान रहे हैं हम. अभी भी पीपल आर गोइंग टू वॉक, इवन यू पीपल मस्ट बी गोइंग टू योर फ्रेंड्स प्लेस टू प्ले एंड दिस. लॉकडाउन मतलब समझते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब. सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल में आपके फ्रेंड्स भी आते हैं, आपके गली वाले भी आते हैं, आपके कॉलोनी वाले भी आते हैं, बट सॉरी यू डू इट अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग. नाउ कमिंग बैक टू दिस, क्या हमें कहा और हम मान गए, ऐसी तो ब्रीड हम है ही नहीं. तो फिर क्या किया, बोला जी रिस्ट्रिक्शन जब तक नहीं होंगी, वो डंडे नहीं पड़ेंगे अच्छे से या कुछ बिल्कुल मिलिट्री रूल नहीं आएगा तब तक नहीं हम मानते. ऐसे ही यहाँ भी कौन सा मान जाते, तो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई. दो रिस्ट्रिक्शंस. नंबर वन, टैक्स लगा. टैक्स का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी समझते हैं बेटा. जब फॉरेन से आप जब इंपोर्टेड गुड खरीदते हो, जैसे हम कहते हैं इंपोर्टेड गुड्स है मतलब फॉरेन से आई, दे आर ऑलवेज एक्सपेंसिव, है ना, दे आर एक्सपेंसिव. क्यों? क्योंकि उसके ऊपर गवर्नमेंट ने जब वो आई हमारे देश में उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसे बोला टैरिफ. टैक्स लगाया ताकि, क्यों लगाया टैक्स? अच्छा इसको एग्जाम्पल से समझाती हूँ. डू यू नो जितनी इंपोर्टेड कार्स हैं, इंपोर्टेड कार्स जो आती हैं, ये बेंटली और ये पोर्श और ये सब हमारे यहाँ नहीं बनती, दे गेट असेंबल्ड हियर. So we are importing from the other country. Why are they so expensive in India? Mercedes ले लो, that is very expensive in India, but if you go to abroad, people can easily afford to buy, right? क्योंकि वहाँ की प्रोडक्शन है, यहाँ आई है. कार्स में कितना टैक्स लगाते होंगे इंपोर्टेड कार्स पे? आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सोच के बताएं. Do you know 200 से 300% टैक्स लगता है. That is why they become costly. That is why they become costly. And why do they impose taxes on that? To make it costly. Why they wanted to make it costly? So that you should not buy. At least they are discouraging many not to buy. And buy what? Domestic cars. बात समझ गए? ऐसा करके by applying heavy taxes on imported goods, they ensure that you buy डोमेस्टिक गुड्स एंड डोमेस्टिक गुड्स की प्रोडक्शन बढ़े और हम सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए. स्टिल मैनी बाय फॉरेन गुड्स. व्हाई वी डू नॉट वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आई रियली डू नॉट नो. क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी हमेशा, हम ब्रांड के अंडर दबे पड़े हैं, ब्रांड कॉन्शियस हैं. सो कॉल्ड ब्रांड्स हमें क्या बना रहे हैं, अगेन डिपेंडेंट ऑन दोस पीपल. सो ओके, कमिंग बैक, सोचने वाले बेटा इंट्रोस्पेक्ट करा करें इन चीजों को, है ना. सिर्फ सुन के लर्न करके छोड़ ना दें, इन्हें समझे व्हाई दे आर सो इम्पोर्टेंट. कंट्री का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा रहे हैं. द मोमेंट आई बाय एनी इंपोर्टेड गुड, इट मींस आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ब्रिंगिंग माय इकोनॉमी बैक. हम मोदी को बोलते हैं पीछे ला रहे हैं, नो, हम सब करते हैं. हम कैसे करते हैं, हम उसे इंश्योर करते हैं कि मर रहा है तो थोड़ा और मार दो. सो रादर देन बाइंग इंपोर्टेड गुड्स, we buy some local goods also. Alright, चलो कमिंग बैक. पहले तो टैक्स लगा दिया. अब मैंने जैसे बोला जब टैक्स लगा दो तो चीज महंगी हो जाती है, लेकिन जो सामान चाइना से आता है वो तो फिर भी सस्ता रहता है. अब क्या करें, मतलब चाइना से जो सामान आया उसके ऊपर टैक्स लगाने के बावजूद भी इतना सस्ता है कि मेरी मार्केट वाला महंगा है. एग्जाम्पल, चाइनीज टॉयज हमारे मार्केट में पता है क्यों इतनी इजीली इमर्ज कर गए? क्योंकि हमारी इंडियन गुड्स जो थे ना, इंडियन टॉयज, वो वुडन होते थे, वुडन. और वुड इज ऑलवेज एक्सपेंसिव देन द प्लास्टिक,
राइट। सो हम अब चाइना के टॉयज आए, हमने उस पर टैक्स भी लगा दिया, अभी भी वो मेरे वुडन टॉयज से क्या है, सस्ते हैं, सो पीपल ऑफ कोर्स विल बाय दिस। तो फिर अब टैरिफ तो फेल हो जाएगा ऐसी गुड्स में। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, चाइना से ना साइकिल्स का भी इंपोर्ट होता था, पहले तो खुला होता था, तो उस पे जब इंपोर्ट किया टैक्स लगा दिया हमने। उनका बढ़िया डिजाइनर साइकिल, क्योंकि दे मेक इट इन बल्क। व्हेन यू मेक इन बल्क, यू रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट, व्हेन यू मेक इन बल्क मतलब कॉस्ट कम आएगी, तो दे आर एबल टू सेल एट लेस प्राइस। तो उन्होंने जिस कोटेशन पे हमें कोट किए, हमने उसके ऊपर टैक्स भी लगा दिया, तो भी वो मेरी इंडियन साइकिल से बहुत सस्ते थे। सो व्हाई वुड पीपल बाय इंडियन साइकिल? दे विल ओनली बाय चाइनीज। तो इंडियन की साइकिल इंडस्ट्री सफर हुई। वर्ल्ड की जो गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जहां साइकिल्स की रिकॉर्डिंग है, रोज के 26 to 28,000 साइकिल्स हमारा हीरो साइकिल बनाता है इन लुधियाना। ओके, सो इट मीन्स वी वर नोन फॉर दैट एंड दे वर डिस्टर्ब्ड कि हमारा तो साइकिल सेल ही नहीं होगा, फिर क्या करेंगे, हमारा फायदा क्या। तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है ऐसे केसेस में, दे अप्लाई कोटा। फिर वो कहते हैं क्वांटिटी रिस्ट्रिक्ट कर दो। अगर कोई ऐसी गुड जिसमें टैक्स लगाने के बावजूद भी वो सस्ती रह जाए, उसके ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दिए जाते हैं। यानी जो वहां से साइकिल आएगा वो सिर्फ 1 लाख आएगा, से फॉर एग्जाम्पल फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने, सिर्फ 1 लाख साइकिल आएगा, वो जिस दिन बिक गया, उसके बाद अब इंडिया में फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड में भी फॉर 6 months और एन ईयर, ये गवर्नमेंट की क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस है। सो उसके बियॉन्ड आपको इंडिया का साइकिल लेना होगा। बात समझ के राजे? दिस इज हाउ वी इंश्योर्ड व्हाट, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन अंडर इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी। लेट्स रीड फ्रॉम नोट्स। इनवर्ड लुकिंग स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट तो मार्क कर ही दिया होगा। इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ रिलायंस, यानी सेल्फ रिलायंट ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्शन। किसको दे रहे हो? अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, थ्रू इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैक्सेस इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पॉइंट नंबर 1, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंप्लाइज, क्या करता है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया तो फिर अब क्या करोगे, खुद बनाओगे। डोमेस्टिक प्रोडक्शन विच द इकोनॉमी हैज बीन importing from rest of the world, so you will produce on your own. This is a strategy to save. अब जब खुद बनाओगे, उनसे नहीं खरीदोगे, तो एक चीज तो हो गई, तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज बच गया। You're not going to give this to the other country. So it was underline कर लीजिए, save foreign exchange. क्यों? Because you are restricting the volume of trade और value भी एक ही बात है, वॉल्यूम क्वांटिटी विल कन्वर्ट इनटू वैल्यू, तभी इकट्ठा करना होगा बेटा। सेकंड पॉइंट, फॉरेन एक्सचेंज बीइंग एक्सट्रीमली स्केर्स, हमारे पास उस टाइम पे बहुत कम थी, पहले ही कम थी, वाज टू बी यूटिलाइज्ड, उसको हमने इसलिए रखा था, पहले ही कम थी, ताकि हम उसे जो डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स हैं, डेवलपमेंटल समझते हैं, मशीनें खरीदने के लिए, वेपन्स खरीदने के लिए रख रखी थी। So it was referring to imports of such plant and machinery which is essential for growth and development. So underline कर लीजिए, foreign exchange for developmental exports. Third point, also the government wanted to protect. तीसरा पॉइंट था, हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को भी प्रोटेक्ट करना चाहते थे। वैसे हमने ये पहले में भी मर्ज कर दिया। ओके हो गया बेटा? राइट, अब चलते हैं आगे। हाँ, अब हमने इसमें एक नीचे क्रिटिकल पॉइंट भी दिया, क्या कि फॉरेन ट्रेड से बाय अडॉप्टिंग दिस स्ट्रेटजी द गवर्नमेंट क्या किया, प्रेफर टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इकोनोमाइज समझते हैं, यूजिंग अप टू द फुलेस्ट, जुडिशियसली यूज करने को बोल दिया, मतलब हम उसे नहीं यूज करना चाहते थे जो हमारे पास थी। रादर देन, दूसरा एंगल नहीं कभी माइंड में आया कि और क्यों ना कमा ले भाई, अगर मेरे पास कोई चीज कम है, से आई डोंट हैव मनी, रादर देन यू सेइंग दैट ये मेरे हाथ से चली ना जाए,
why I am not concentrating on why can't I earn more. That would have been the better option, but पता नहीं, तो हमने इसीलिए इसको थोड़ा नीचे क्रिटिकली अप्रेस किया कि उनको ये बात उनके माइंड में नहीं है, हम उसे बचाने में लगे रहे, इसको बचा ले किसी तरह से, और नहीं कमाया. देन हमने गवर्नमेंट मेड 2 ways to protect goods. अब किया कैसे पूछ सकते हैं, how did they ensure this? By applying tariffs and quotas. So number 1, tariff. Tariff refer to taxes levied on imported goods. The basic aim, क्यों लगाया, आपको पेपर में सीधा आ सकता है 1 मार्क के लिए. Why the taxes were imposed on these goods? क्यों था, डिस्करेज कर रहे थे हम लोगों को खरीदने के लिए. So the basic aim for imposing heavy taxes on import goods was to make them more expensive and discouraging their use, right? Second, quota. Quota का मतलब मैंने क्या बोला है, quantitative restriction. So quota refers to fixing the maximum limit, underline कर दो, on the import of a commodity by a domestic producer. अब इसके जो अपने इसके बाद इसका कुछ फायदा भी हुआ होगा, कुछ नुकसान भी हुआ. दैट आई विल रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो. कीप वॉचिंग. बाय बाय.